हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ PSCSTL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਿਨ ਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਹੈ PSPCL ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਹੁਣ पेपर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PSTCL ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ PSPCL ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹ PSPCL ਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸੀ ਸਾਲ ਹੋਇਆ PSPCL ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੈ 2019 ਦਾ। ਮੈਨੂੰ PSTCL ਦਾ JEE ਦਾ ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ PSPCL PSTCL ਮੋਰਲੈਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ AE ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ JEE ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਰਲੈਸ PSPCL ਔਰ PSTCL 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸੇਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 70-30 ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ PSPCL ਔਰ PSTCL ਦਾ, ਹੁਣ 50-50 ਹੈ। पैटर्न वही है, पैटर्न मतलब 50 ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ आएंगे, 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ आएंगे, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ आएंगे, 10 ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ आएंगे ਤੇ 10 ਤੁਹਾਡਾ GS ਦੇ आएंगे। ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲਿਆ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਵਲ ਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਦਾ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं पूछता हैगा। तो जतिन सर, तो इसका बताइए आपने एनालिसिस किया इसका, तो किस तरीके से है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। सर इसमें जैसे मैंने एनालिसिस किया है तो 2025 को हम एक तरीके से रेफरेंस मान के चलेंगे सबसे पहले, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सिलेबस हमारे पास नहीं है, तो सिलेबस नहीं है तो रेफरेंस हम इसको मान के चलेंगे 2025। अब यहाँ पर अगर 2019 को देखें और 2025 को देखें तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। तो 2019 के लिए बस लिख दिया है, बट हम इसको कभी रेफरेंस नहीं समझेंगे। फिर 2025 में अगर देखा जाए तो वेटेज वाले जो सब्जेक्ट आते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया आपका, FM OCF टर्बाइन के क्वेश्चंस भी आए हैं, हाईवे हो गया, एनवायरनमेंट हो गया आपका, BMC हो गया, ये क्वेश्चंस काफ़ी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। सोम के अंदर भी अगर काफ़ी देखें तो जैसे इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और टोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस वाला टॉपिक है, FM OCF एक क्वेश्चन आप OCF में से पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन FM के हैं। सिमिलरली हाईवे के ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाले पैरामीटर और पेमेंट मटेरियल से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है सोम इम्पोर्टेंट है, FM, हाईवे, एनवायरनमेंट, BMC, सोइल एंड सर्वे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट 7 सब्जेक्ट है। बाकी सबसे क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए हैं यहाँ पर जो है। अगर हम बाकी अदर सब्जेक्ट्स स्टेट्स की बात करें सर, जैसे RCC बाकी स्टेट्स में के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप JEE वगैरह की बात करो या स्टील की बात करते हैं या सोइल की बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं, इनकी वेटेज अच्छी होती है। बट इस एग्ज़ाम के अंदर इनकी वेटेज को कम रखा गया है, बाकी सारी वेटेज को ज़्यादा रखा गया। फिर एक माइंड में थोड़ी ये भी आएगा सर, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि अब की बार चेंजेस आ जाए, इसमें भी देखने को मिले कि जैसे सोइल है और सर्वे है, अब की बार इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले 7 सब्जेक्ट जिसमें सोइल सर्विस भी इंक्लूड हो रहा है, ये तो कंसीडर करने हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इन 7 सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 50 में से आप ये मान के चलो कि इनके 35+ नंबर तो बन ही जाएंगे टेक्निकल के अंदर, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा क्रैक करने के लिए। बाकी नॉन टेक तो है ही है सर इनके पास। अब इसमें मेरे को सर जो मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है कि जो पीटर प्लेस्बी ने भी पेपर पीछे से लिए हैं, तो उसमें भी ये जो शुरू के जो 8-10 सब्जेक्ट है ना, इसी का मेरे को लग रहा है वेटेज उसमें भी ज़्यादा रहता है। हाँ। और अगर हम SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें एक सब्जेक्ट अगर छोड़ दें तो उसमें भी जो मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो यही है। हाँ। तो अगर वो गेम खेलेगा भी, अगर सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन अगर सपोज बढ़ाएगा भी, तो मेरे को लगता है वो सर्वे, जैसे आपने बोला सॉइल एक बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मे बी हाइड्रोलॉजी वगैरह, तो इनसे थोड़ा सा वो मेरे को लग रहा है वो वेटेज बढ़ा सकता है इसमें। हाइड्रोलॉजी तो सर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोलॉजी के इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, सर्वे हो गया आपका, सोइल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो है आपका एक एस्टिमेशन कोस्टिंग, CPM PERT, RCC, ये SSC के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बट क्योंकि यहाँ पर देखो 2019 में भी कम क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे भी कम पूछे क्वेश्चन, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन
क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछेगा। इसलिए अगर क्योंकि 2 महीने हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर ये स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स को छोड़ भी देते हैं तब भी ये ईजिली 35+ ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अभी अगर आप ओनली PSTCL को टारगेट कर रहे हो तो 14 के 14 सब्जेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी सर बोल रहे हैं। अगर आप ये टॉप के जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करके चले जाते हो, और इसमें से मेरे को लग रहा है अराउंड 40 क्वेश्चन जो है ये एक्सपेक्ट करें, अगर इसमें भी अगर माइनस करें 1 2 3 4 5 6 मतलब 44 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जो हैं वो इन्हीं टॉप के 10 सब्जेक्ट्स के हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट वगैरह, सॉइल वगैरह, आपका सॉम वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल, मतलब जो नॉर्मली जो ट्रेंड में होते हैं, तो उसी को आप स्टार्ट करें। बाकी नॉन टेक को जरूर एडवांटेज बनाइए, क्योंकि नॉन टेक में पंजाबी के 20 क्वेश्चन है, तो पंजाबी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत डिटेल में क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप में से सिविल में से ऐसा है जिनको नॉन टेक वीक है, पंजाबी वगैरह, क्वांट रीजनिंग वगैरह, तो उसका ओनली नॉन टेक का वो एक मॉड्यूल अवेलेबल है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा जतिन सर, इसमें अब जैसे टॉपिक्स इनको सारे करने हैं सब्जेक्ट्स में, कैसे करना है इसको? नहीं, टॉपिक सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है तो ये देखने को मिला है कि कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे सोम में मैंने बताया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया है, टोर्शन वाले टॉपिक से पूछा गया है, हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, पेमेंट मटेरियल, एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऑफ वाटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपिक सारे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर हम सारे टॉपिक्स करेंगे तो इसमें टाइम भी नहीं है इतना, और ना ही कर पाएंगे। तो पेपर की एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ समझ आती है कि सारे टॉपिक्स तो नहीं करने हैं, और इसलिए अगर रेफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे हम आप बताएं कि हम बैच भी लॉन्च करेंगे, तो फ्रेंड्स हम आपको गाइड करेंगे अच्छे से, और आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट होगा, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। कि आपको अगर एनवायरनमेंट पढ़ना होगा तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स ही करने हैं जिसमें आपकी कवरेज हो जाए क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेटर है, लेकिन आपको फिर सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि टाइम नहीं है आपके पास इतना पढ़ने का। तो इसलिए इंपॉर्टेंस आती है गाइडेंस की, तो जो हम अवेलेबल हैं आपके लिए, तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये जो है टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स फिर आपके लिए रेलिवेंट होगी। जैसे 3-4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए कि सब्जेक्ट्स के ये इंपॉर्टेंस है। सर्वे की अगर बात करते हैं तो सर्वे से भी 3-4 टॉपिक्स ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही करना है। अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब पंजाब में इलेक्शंस है 27 में, तो अब वैकेंसीज तो आनी ही आनी है यार। बहुत बच्चे स्टिल कमेंट कर रहे हैं, डाउट ले रहे हैं कि सर वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, कितनी आएंगी, कौन से डिपार्टमेंट में आएंगी, या सफिशिएंट वैकेंसीज आएंगी, जेई की भी आएंगी और एई की भी आएंगी। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अपने आप से पूछो क्या तुम रेडी हो? नोटिफिकेशन आ गया। मैंने पिछली बार भी ये बोला था कि जब मैंने वो एनालिसिस किया था 22 और 27 के इलेक्शंस के साथ, कि 22 में क्या सिचुएशन हुआ था, 27 में क्या हो सकता है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, अगर किसी ने मेरा वीडियो को सुना है, कि अब अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें वो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि इलेक्शन फरवरी के अंदर है। तो 2-3 महीने पहले तक पॉजिटिविटी एक फैलाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि अपना वो नाम स्प्रेड करें। तो मेरे को लग रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो सारी प्रोसेस को अगर कंप्लीट करना है, एडवर्टीजमेंट आना है, पेपर कंडक्ट करना है, फिर रिजल्ट निकालना है, फिर डीवी वगैरह होना है, फिर ऑफर लेटर वगैरह अगर आपको देनी है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, तो ये 6-8-10 महीने का प्रोसेस है। तो बिना कोई वेट करे, बिना कोई डिले करे आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अभी भी अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है, डोंट गो इनटू वो ऐसे क्वेश्चन कि भाई सर आएंगी नहीं आएंगी, यार मत जाओ उन चीज़ों में, बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वेट मत करो, अपना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो PSTCL को अगर तुम टारगेट लेके चलते हो, वो तो मैं बोलता हूँ हमेशा, डोंट सी कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पेपर सारे के सारे तुम्हें भरने चाहिए और तैयारी करके पेपर देने चाहिए। क्योंकि अगर तुम तैयारी करके पेपर दोगे और पेपर नहीं निकलता है, तो तुम एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक हुआ, कहाँ पे तुम्हारा वीक रह गया, कहाँ पे तुम्हें और इंप्रूवमेंट करनी है। और एक एग्जाम डे वाला प्रेशर भी होता है, वो सारी चीज़ों को अगर तुमने करना है तो पेपर लिखते रहो, सारे के सारे लिखते रहो। डोंट सी कि कितने जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगला मेरे को लग रहा है नोटिफिकेशन मिड दिसंबर के आसपास कोई ना कोई तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम लोग इसका PSTCL का बैच अभी नहीं लॉन्च कर रहे हैं, अभी कोई भी और नोटिफिकेशन आएगा तब हम बैच लॉन्च करेंगे, उसमें इसको भी प्रायोरिटी देके हम चीज़ें को करवा लेंगे। बाकी क्योंकि 4 महीने तो यार हमें भी चाहिए चीज़ों को, सिविल का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम है, उसको हम एंड में करवाएंगे, लेकिन स्टिल यू विल वांट कि सर हमें करना तो सारा ही पड़ेगा ना। यस, करना सारा है, क्योंकि कंपटीशन है, कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो, और हर किसी को चाहिए जॉब, चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं पता 27 में इलेक्शन के बाद, उसके बाद वैकेंसीज कब आएंगी,
किसी को नहीं पता है, तो तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 700-800 के आसपास जेई का, 200-250 के आसपास एई का वैकेंसी आने की अपॉर्चुनिटी है, चांस है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक है जतिन सर, थैंक यू, आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला और ये बताया। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट में डाल दो, वी विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू।